So our program will go ahead. Another international guest in front of us, all the way from Meghalaya, Assistant Professor Dr. Nilanjan Majumdar is already over here. Of course, we have time limit, 15 minutes, and obviously quality over quantity. Within 15 minutes, our Assistant Professor Majumdar will deliver dashing lectures and speech which will inspire to all of us, and we are really eager to listen to him. Yes, Dr. Saab, please. Good afternoon. Namaste, salam. मैं नीलांजन मजुमदार from India. I reside in Assam, but yes, I work in University of Science and Technology, Meghalaya. I extend my immense gratitude to the organizers. I convey my respect to all the dignitaries on the dais, across the dais. Thank you so much for, at least, for giving the opportunity to talk. And I'm really, this is my, you can say my first visit in Nepal. So I'm really grateful. And I'm overwhelmed with happiness because I really have a strong love for South Asian countries. So, एक ख्वाब देखते हैं आज, एक ख्वाब देखते हैं ऐसी कि हम फ्यूचर ऑफ नेपाल कि क्या बन सकती है नेपाल, क्या हो सकती है नेपाल, क्यों ना ऐसा कुछ सोचें कि अगले 20 सालों में नेपाल में चेंजेस ऐसे आए कि दैट विल इन हायर एजुकेशन सो दैट इट बिकम्स अ हब फॉर international tourism as well for education. Why not bring back whatever we had, whatever Nepal had in earlier times? पहले जो था वो अब क्यों नहीं है? पहले इतने लोग in history we have found. I did my MA in history as well. So वहाँ पे हमने हमेशा नेपाल का reference हमको हमेशा मिला है. So in that context, मैं अगर आपको बताऊं कि by the year 2030, Nepal is going to be a hub. How will you, can you imagine, आप imagine कर सकते हो क्या? Can you imagine that? And let us think about, in the context of this conference that is looking forward, it's a progressive roadmap. So we are thinking, let us be more aggressive now. अभी progressive से हम लोग aggressive बन जाएंगे और creation of this education hub can be made by making the system resilient. Resilient मतलब सहनशील बनना हर system में. इसमें it is, we are not talking about religion anything, but we have seen so much of challenges. Dr. साहब ने चौहान सर ने सब ने they have shown path कि कैसे improvement हो सकती है. बट अभी मैं बात करने वाला हूँ कि इम्प्रूवमेंट तो ठीक है, इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन इम्प्रूवमेंट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. तो इसमें आपको बहुत रेजिलिएंट बनना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल. जब आपका पलड़ा कभी इस तरफ भारी रहेगा या कभी उस तरफ, तो आपको दोनों को बैलेंस करते हुए यू हैव टू स्ट्राइक द बैलेंस टू सी योर ड्रीम कम ट्रू. सो एक विजन करना है. So let me start my presentation by understanding that my title is Creation of Resilient Education System. So यहाँ पे मैंने बोला कि resilience का meaning ये अगर dictionary meaning आप देखें तो dictionary meaning है capacity to withstand और to carry on the face of adversity. Adversity मतलब very recent example हम लोग सोच सकते हैं कि COVID-19 जब आया था तब हम लोगों ने COVID-19 को predict किया था क्या? Forecast नहीं किया था हम लोगों, हमको नहीं पता था. लेकिन the global education system, in the Indian education system, the South Asian nations education system has crossed the path through all the ups and downs. हम लोगों ने flexibility के साथ हम लोगों ने recover कर लिया. But during that point of time, अगर education system stop हो जाता just for the limitation that physical presence नहीं हो सकते, तो क्या ऐसा क्या बात बनता? नहीं बनता. So such kind of upcoming events, unprecedented, जो हमको पता नहीं कि आएगा या नहीं,
कैसा होगा नेक्स्ट सिचुएशन, वर्ल्ड वॉर 4 आए या क्या होगा हमको नहीं पता. सो वी हैव टू कीप ऑन बीइंग वेरी फ्लेक्सिबल एंड टू थिंक प्रोग्रेसिवली. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो रेजिलियंस का मतलब वही होता है कि टू एनी एडवर्सिटी में आप बाउंस बैक करो, सिचुएशन फिर से आओ, जैसे जापान जैसे होता है हमेशा. सो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिलियंस कुछ कंपोनेंट है, हम लोग को हमें समझना पड़ेगा कंपोनेंट्स को. इसको बताते हैं हम लोग कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस मतलब सर ने भी बोला आज से, सोहन शाह सर इज़ वेरी होपफुल एंड दिस इज ऑप्टिमिज्म. दिस इज वन कंपोनेंट ऑफ द रेजिलियंस स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क. हार्डीनेस, connection, networking, character, integrity, like contribution to the where you are persisting. कोपिंग मतलब एडाप्टेबिलिटी, एडाप्टेबल होना, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ के साथ इमर्स हो जाना, मिल जाना, घुल जाना. देन यू हैव टू टेक कंट्रोल ओवर व्हाट यू आर डूइंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो हम क्यों बात कर रहे हैं रेजिलियंस के बारे में इतना? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो हम लोग रेजिलियंस के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रेजिलियंस इज वन ऑफ द पिलर्स. What is the thread which ties all the pillars of United Nations for achieving the goal of sustainable development goals, that is sustainable जो 2030 का एजेंडा है, उसमें यूनाइटेड नेशंस का जितने सारे पिलर्स हैं उन लोग को एक साथ बांधता है, तो वो है रेजिलियंस. यहाँ पे मैंने ड्यूरिंग द सेशंस मैंने सुना तो मैंने समझा कि बहुत बड़ी बात है हायर एजुकेशन में हमेशा होती है एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. यहाँ पे जो सब आज बोला गया मैंने सुना, उन्हीं को मैंने जस्ट जॉट डाउन किया. देन कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशनल जर्नी, ब्रेन ड्रेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट. टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ ब्रेन ड्रेन, ये बात मैंने जस्ट ऐड किया अभी कि ब्रेन ड्रेन यही है कि यहाँ पे कोई अच्छा करता है तो हमेशा वो चला जाता है बाहर. दे गो आउटसाइड द कंट्री एंड डू बेटर देयर. Why not? There should be a retention policy from the government side to keep them here. लोगों को यहाँ पे रहने का कुछ एक मोटिवेशन देना चाहिए, तो उसके लिए पैकेजेस बनाने पड़ेंगे. इसके लिए अच्छा थिंक नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. देन वी हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रपोजल्स और हाउ वी डील विद इट. हम लोग कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे डील कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को, जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सुने आज. से रिटेंशन ऑफ द स्किल्ड पीपल. अभी स्किल्ड पीपल को रिटेंशन, ये सब एवरीथिंग आर कनेक्टेड. देखिए बोला गया है कि अ कंट्री इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक. वीकेस्ट लिंक मतलब एक कंट्री उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना उसका वीकेस्ट एरिया या वीकेस्ट कम्युनिटी होगा. सो आपके यहाँ पे आप इंडिया भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना सबसे जो वीकेस्ट गांव होगा, वही गांव या जो सिटी होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग है इंडिया. In this way, in same here in Nepal, the weakest place will be, Nepal is as strong as its weakest link. So हमको पहले वो आइडेंटिफाई करना है, उनको एनर्जाइज करना है. जैसे इंडिया में विलेजेस, रूरल एरियाज को पहले से ही लास्ट 40 साल से वही किया जा रहा है, एनर्जाइज किया जा रहा है, करते करते अभी नाउ थिंग्स आर गोइंग अ बिट बेटर बट नॉट आउटस्टैंडिंगली वेल. वी आर नॉट डूइंग आउटस्टैंडिंग वेल बट वी आर ट्राइंग, स्टिल वी आर परसर्विरेंस. लाइक हम लोग परसर्वेयर कर रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं, एंड्योरेंस हम लोग कंटिन्यूस कोशिश कर रहे हैं. देन retention of skilled people, retention of talents, encouraging job creators, startup culture, creating packages for weaker section in the education और indigenous knowledge management. जो हम लोग जो इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 2020 का एजेंडा है. अभी मैं अगर आपको बताऊं कि इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं जिस यूनिवर्सिटी में काम करता हूं अभी, उनके जो फाउंडर है श्री महबूबुल हक साहब ने, उनका भी विजन कुछ ऐसा ही था. वो भी एकदम रूरल एरिया से, इंडिया के एकदम रूरल एरिया से निकले हुए हैं. देन ही वॉकड अराउंड, उन्होंने MCA पोस्ट ग्रेजुएशन किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से. देन ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी बट ही डिडंट गो अब्रॉड. ही केम बैक टू इंडिया, ही केम बैक टू हिज होम टाउन. अपने गांव में बैठ कर लड़कों को वहाँ पे पढ़ाया. इसके बाद टाउन में आए, उन्होंने एक कंप्यूटर 4 स्टूडेंट्स को लेकर शुरू किया. Then from those 4 students, now he has a capacity of holding 8,500 students in his own institutes. So institutes है उनका, there are 4 school of education, school of pharmaceutical science, school of business science, school of law, 1 university, 1 Ayurvedic medical college and 1 international medical college which is coming in the next 2 years. So this is how things can happen down the line in
इन अराउंड 15 to 20 years यही रिवोल्यूशन हुआ है. तो वो तो है असम के. नाउ यू थिंक अबाउट इंडिया, देयर आर सो मेनी पीपल. सो इन द सेम context, if I tell you ki why not, if there can be an USTM in Assam, then why not an USTM kind of some sort of institute, maybe private in nature, why not in here in any district of Nepal? So why not people come up with entrepreneurship, startups, or to encourage education, ताकि ये एक hub बन जाए. जैसे मैं भी वेलकम करता हूँ आप सबको कि प्लीज़ कम टू इंडिया, कम टू मेघालय, कम टू USTM टू विजिट द कैंपस, देन यू विल अंडरस्टैंड. फॉर दैट मैं आपको एक वर्चुअल टूर देता हूँ. जस्ट 2 मिनट का वीडियो है, काइंडली प्ले कर दीजिएगा. सो दैट दिस इज हाउ आई कंक्लूड माई स्पीच. आई थैंक्स टू मिस्टर तनवीर आलम एंड आतिफ हनीफ एंड योर टीम. थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. हियर्स प्लीज़ स्टार्ट से वो कीजिएगा, स्टार्ट से कीजिएगा थोड़ा. सो हियर्स USTM फॉर यू. थैंक यू सो मच. लाइट्स थोड़ा ऑफ कर दो.